بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم آپ کا لیکچر نمبر 16 ہے۔ کل والے لیکچر میں ہم لوگوں نے پڑھا قانون رصد کی حدود، کہ قانون رصد کن چیزوں پر لاگو نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا زر نقد کی ضرورت، کہ اگر فروخت کنندگان کو کسی مجبوری کی بنا پر زر نقد کی شدید ضرورت پڑ جائے تو وہ کم قیمت پر ہی اپنی شے کی رصد کو بڑھا دیتا ہے، اور اس طرح قانون درست ثابت نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا غیر مستحکم حالات۔ اگر ملکی حالات غیر مستحکم ہوں، بد امنی یا جنگ کا خطرہ ہو، تو جن تاجروں کے پاس مختلف اشیاء کا اسٹاک ہوتا ہے وہ فوری طور پر اسے بیچنے کے لیے کم قیمت پر ہی رصد میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا فوری نقل مکانی۔ اگر لوگوں کو اچانک فوری طور پر اپنا گھر بار چھوڑنا پڑ جائے تو بھی وہ کم قیمت پر شے کی رصد کو بڑھا دیتے ہیں اور قانون غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ اسٹوڈینٹس، آج ہمارا اگلا ٹاپک ہے منڈی کی رصد کا گوشوارہ اور منڈی کی رصد حد رصد۔ آئی کام والے اسٹوڈنٹ کا یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ اس کو پڑھیں گے، اور ایف اے والوں کا پیج نمبر ہے 167۔ منڈی کی رصد ہے کیا؟ کہ جب کسی شے کی مختلف قیمتوں پر منڈی میں موجود اس شے کے تمام فروخت کاروں کی مجموعی رصد کو ظاہر کیا جاتا ہے تو اسے منڈی کی رصد کہتے ہیں۔ منڈی کی رصد سے مراد مختلف قیمتوں پر جب مختلف فروخت کار شے کی رصد کو منڈی میں پیش کرتے ہیں، اشیاء کی کل مقدار کو پیش کرتے ہیں، تو وہ منڈی کی رصد کہلاتا ہے۔ اسٹوڈینٹس، آپ نے قانون رصد، اس کے بعد رصد کا گوشوارہ اور رصد کی ڈائیگرام کو پڑھا۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک فروخت کار مختلف شے کی قیمت پر اپنی شے کی رصد کو بیان کرتا ہے کہ جب قیمت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو فروخت کار شے کی رصد کو بڑھاتا جاتا ہے۔ اسی طرح منڈی کی رصد قیمت بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک فروخت کار نے بھی اپنی رصد کو بڑھا دیا، بی فروخت کار نے بھی رصد کو بڑھا دیا۔ جب تمام فروخت کار کی رصد کو جمع کر لیا جاتا ہے تو طلب کی طرح منڈی کی رصد ہوتی ہے۔ 2 کو 3 جمع کر لیا 5، اسی طرح ہم نے اس کو اے اور بی فروخت کار کی رصد کو جمع کر لیا تو 7 بن گیا۔ 2 یا 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں منڈی میں فروخت کار۔ تو اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے قیمت میں اضافے کے ساتھ ساتھ منڈی کی رصد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کی ڈائیگرام ہم بناتے ہیں۔ مقدار رصد، قیمت 2 4 6 6 8 10۔ جب ہماری قیمت 2 تھی
रसद मंडी की रसद थी 5, रोहतकार की नहीं, मंडी की रसद को लेना है। जब हमारी कीमत 4 हो गई तो हमारी मंडी की रसद क्या थी? 7। इसके बाद 6 हो गई तो 9 पर चलिए। हमारा हत्ते रसद ये बना, किसका? मंडी की रसद का। ठीक हो गया? तो ये था मंडी की रसद। अब हमने पढ़ना है रसद में तब्दीलियां। कि रसद में तब्दीलियां किस किस तरह से हो सकती हैं। सबसे पहला है रसद का फैलना और सिकुड़ना। इसके बाद रसद का बढ़ना या गिरना। रसद का फैलना या सिकुड़ना से मुराद या हत्ते तलब में तब्दीली, हत्ते रसद में हरकत, एक ही चीज। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हत्ते रसद का फैलना। रसद में 2 तरह की तब्दीलियां हो सकती हैं, रसद का फैलना और सिकुड़ना, रसद का बढ़ना या गिरना। रसद का फैलना और सिकुड़ना या हत्ते रसद में हरकत, इसकी क्या वजह? कीमत की वजह और इसमें दीगर अवामिल। हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं कि इनसे क्या मुराद है। रसद के फैलने से क्या मुराद? कि जब किसी शय की अपनी कीमत में इजाफा हो जाए, जब किसी शय की अपनी कीमत में इजाफा हो जाए तो उसकी रसद में इजाफा का नाम रसद का फैलना। रसद के फैलने से मुराद कि जब किसी शय की अपनी कीमत में इजाफा की वजह से इसकी रसद में इजाफा हो जाए तो इसे रसद का फैलाव या फैलना कहते हैं। इसको हम गोशवारे से पहले जाहिर करते हैं। इसमें यहाँ पर लेते हैं कीमत और मिकदारे रसद। कीमत थी 5, हमारी रसद थी 10। कीमत हो गई 10, हमारी रसद क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? बढ़नी चाहिए। उस शय की कीमत में इजाफे की वजह से जब उसकी रसद पहले से बढ़ गई, कीमत के बढ़ने की वजह से रसद भी बढ़ जाए तो हम इसको कहते हैं रसद का फैलना या रसद का फैलाव। कीमत में इजाफे की वजह से मिकदारे रसद में इजाफा हो जाए तो इसको कहते हैं रसद का फैलना। किसी और वजह से नहीं, दीगर अवामिल की वजह से नहीं। उसी शय की कीमत, मिसाल के तौर पर गंदम की कीमत में इजाफा हो, किसी चावल की कीमत में नहीं बल्कि गंदम ही की कीमत में इजाफा हो और गंदम की रसद में इजाफा हो जाए, गंदम की रसद में इजाफा हो जाए, इसको कहते हैं रसद का फैलना। यहाँ पर हम डायग्राम से देखते हैं। यहाँ पर मिकदार रसद और यहाँ पर कीमत। जब हमारी कीमत 5 से 10 हो गई, हमारी रसद, पहले हम यहाँ पर लिखे 10, 20, हमारी कीमत 5 थी तो हमारी रसद क्या थी? 10। हमारी कीमत बढ़ गई, हमारी रसद भी बढ़ जाएगी। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया तो हमारा हत्ते रसद ड्रॉ हो गया, जो कि ये जाहिर करता है कीमत के बढ़ने के साथ हमारी मिकदार रसद भी जब बढ़ जाए
इन दोनों को जब मिला दिया जाए तो हमारा हत्ती रसद बनता है। अब रसद का फैलना, रसद के फैलने से मुराद रसद, हत्ती रसद के साथ हरकत होती है। हत्ती रसद ने ऊपर नहीं जाना, ये हत्ती रसद है ना, हत्ती रसद ने ऊपर नहीं जाना, हत्ती रसद ने नीचे से नहीं जाना, बल्कि हत्ती रसद में हरकत होती है। हरकत नीचे से ऊपर, दाएं हाथ से बाएं हाथ की जानिब, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं जानिब की तरफ, और ये हरकत रसद के फैलने को जाहिर करती है। ये हमारा होता है रसद का फैलना। कीमत में इजाफे की वजह से रसद भी जब बढ़ जाए, हत्ती रसद नीचे से ऊपर की जानिब, बाएं से दाएं जानिब जब हरकत करता है तो ये कहलाता है रसद का फैलाव। स्टूडेंट्स, ये था रसद का फैलना। अब हम देखेंगे रसद का सिकुड़ना। रसद के सिकुड़ने से क्या मुराद कि जब किसी शय की अपनी कीमत में कमी वाक़या हो जाए तो उस शय की रसद में भी कमी वाक़या हो जाए तो हम उसको कहते हैं रसद का सिकुड़ना। रसद के सिकुड़ने से मुराद जब किसी शय की अपनी कीमत में कमी वाक़या हो जाए और उसकी वजह से जब उस शय की रसद में भी कमी वाक़या हो जाए तो उसे कहते हैं रसद का सिकुड़ना। हम इसको गोशवारा से जाहिर करते हैं। पहले हम लेते हैं कीमत, फिर मिकदारे रसद। हमारी रसद थी 10, हमारी कीमत 20। कीमत के कम होने की वजह से हमारी रसद भी कम हो गई। कीमत के कम होने की वजह से जब हमारी मिकदारे रसद भी पहले से कम हो जाए तो हम इसको कहते हैं रसद का सिकुड़ना। इसकी हम डायग्राम देखते हैं। पाँच से 10 और 10 से 20। पहले हमारी कीमत 10 थी तो हमारी मिकदारे रसद क्या थी? 20। ज्यादा कीमत थी, ज्यादा रसद थी। कीमत कम हो गई, हमारी रसद 10 से 20 से 10 पर आ गई। हमारा हत्ती रसद अब ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं जानिब हरकत की। इसमें कीमत में कमी की वजह से जब रसद भी कम हो जाए तो इसको कहते हैं रसद का सिकुड़ना। अब हमारा हत्ती रसद ने किस तरफ हरकत की? ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं जानिब। तो ये कौन सा हत्ती कहलाया? हत्ती रसद का सिकुड़ना। हत्ती रसद का सिकुड़ना। हमने देखा हत्ती रसद का फैलना, हत्ती रसद का सिकुड़ना। हत्ती रसद के फैलने से मुराद कि जब इस शय की कीमत में इजाफा हो जाए और इसकी वजह से जब इस शय की रसद में इजाफा हो जाए और हमारा हथ नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं जानिब हरकत करता है तो हम इसको कहते हैं रसद का फैलना। इसके बाद हमने देखा रसद का सिकुड़ना। रसद के सिकुड़ने से मुराद जब उस शय की अपनी कीमत में कमी वाक़या हो जाए, इस वजह से उस शय की रसद भी पहले से कम हो जाए तो हम उसको कहते हैं रसद का सिकुड़ना। ये हमारा हथ
اوپر سے نیچے اور دائیں سے بائیں جانب حرکت کرتا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہم پڑھیں گے رسد کا بڑھنا یا گھٹنا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ ابھی تک کے لیے اللہ حافظ۔